Hello everyone, this is Justice a Learner and I'm your English trainer. Once again, we are diving in a session over revision. We are revising the stuff what we covered in previous sessions. So this is the third session over revision. In last sessions, we have covered what is tense, how many categories are there, what are persons and how many categories are there for persons, and we also covered simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. So let us move further with a quick review what we covered yesterday and in previous sessions. Okay, so let me start this with warm-up exercise. I'll be asking few questions and you'll be answering. So Pallavi ji, let me know um, Yes, वह sir. बाजार गई है. What will be the English translation for it? बाजार गई वह बाजार गई है. she Yeah, she has gone gone to market. correct. Which tense is this? Uh, Present perfect tense. Yes. Can I also frame this sentence into Hindi like this? वह बाजार जा चुकी है. Is it correct? Yes, sir. English would be same, right? She has gone to market, right? Yes, sir. Okay. One more thing I would like to ask. This I did not discuss in yesterday's session, but when I was taking class, I just told you. Can anyone tell me what would be the short form for has not and have not? Hasn't and Abbreviation. Hasn't and haven't. Great. Anything else we can use in place of hasn't or haven't? Ain't, ain't, right? Okay. Can anyone tell me like ain't can be used for how many things? Ain't can be used in place of what? am not. Yeah, am not. Yeah, okay. And has and have plus not. Great. So we must understand we can also use this. This is basically American English, right? We also shall understand that this can be used in language, in speaking, spoken English, but this is generally not used in written English, right? As ain't is a kind of slang, which is generally used in American English. Do you understand what a slang is? Does anyone know what a slang is? What is a slang? You may Google and just tell me right now. What does it mean by slang? Is it something we can use in official way, like or formal atmosphere, or it is something which we can use only in informal setup? What do you think? Informal setup. Like nowadays, our generation has been using these slang words mostly. Yeah. So slang basically terms to informal words. So this is American slang, ain't. That's why I just told you to refrain from writing like this ain't should not be written should not be used in written language or in formal setup, right? So we can say in Hindi like बोल चाल की भाषा है ना. So slang can be termed in that way. Okay, please turn on a camera, Surjit ji, Monali ji, Abhijit ji, and be active and participate actively, right? Otherwise this session basically does not help anyone, and it would not especially help you when you are not active. Okay.
आई ऑलवेज डाउट माई सेशंस। तो थोड़ा एक्टिव बैठ जाइए तो हो सकता है कुछ आ जाए समझ में, अदरवाइज ये मदद तो होती नहीं इससे, कंफ्यूजन और बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल बताया उन्होंने, पल्लवी जी ने। नाउ आईड लाइक टू आस्क टू मोनाली जी, एक और एग्जांपल वो कर लेते हैं। क्या तुम जा चुके हो? रात में जा चुकी। प्रेजेंट शुरू है ना? या प्रेजेंट एंड चुके हो, काम हो चुका है या फिर क्या है, किस में जाना चाहेंगे आप? चलिए पहले मुझे बता दीजिए, क्या तुम जा चुके हो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? V3। नहीं, वो तो मेन वर्ब में वी थ्री लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हैव हैज। हाँ, हैव हैज, तो क्या तुम जा चुके हो, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैज या हैव? यू हैव हम्म गॉन। अब ये क्या है आगे, तो क्या वाले में क्या करते हैं? अगर इंट्रोगेटिव होता है तो शुरुआत में क्या आता है? हैव यू गॉन? यस करेक्ट। बहुत लंबा समय लिया आपने लेकिन सही बताया। सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, जस्ट। और तो आपने बोला टर्न ऑन कैमरा। सो तो व्हाट, जस्ट ज्वाइन किया है, कभी ज्वाइन किया है, इंग्लिश मस्ट बी विद यू, राइट? या। ओके, राइट, तो हैव यू गॉन इज करेक्ट आंसर। दिव्या जी, जस्ट लेट मी नो, क्या उसने जाने की कोशिश की है, व्हाट विल बी ट्रांसलेशन फॉर इट? क्या उसने जाने की? कोशिश की है। हैज ही ट्राइड टू गो? हैज ही ट्राइड टू गो, करेक्ट, हैज ही ट्राइड टू गो। सावन जी आप बताइएगा। um, मैंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की है। सर हिम्मत। आई वेंचर, थिंक वेंचर लगा सकते हैं यहाँ पे आप चाहें तो, जैसे बाहर जाना कोई कोई। वेंचर। हाँ, वेंचर और आउट हो जाएगा बाहर के लिए। मैंने बाहर जाने की कोशिश नहीं की है। आई हैवंट ट्राइंग टू वेंचर आउट। आई हैवंट आई हैवंट ट्राई। ट्राइड या ट्राई टू थर्ड पर्सन या ट्राई टू वेंचर आउट। यस, वेंचर आउट मीन्स कुछ करेजियस इवेंट करना, काइंड ऑफ एडवेंचर और व्हाट, राइट? ठीक है, आई हैवंट ट्राइड टू वेंचर आउट, और आप चाहें तो एंट का यूज कर सकते थे, हालांकि स्लैंग है ना। आई एंट ट्राइड टू वेंचर आउट। ग्रेट। ओके, प्रसाद जी बताएंगे आप मुझे, क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो? क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो? यस सर। क्या आवाज तुम नहीं है। क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो? सर इस वन टाइम रिपीट। क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। सर आप रहने दो सर सर। बाहर कुछ तो बज रहा है सर। आपके भीतर कुछ तो नहीं बज रहा? किसी पार्टी को तो का माहौल शादी बन रहा है। किसी को क्या, तो शादी बज रही है बैंड उधर। ठीक है, क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो? क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो? उससे। उससे। ओके। हम्म हैव यू ट्राई टू स्पीक विथ हिम? पहले मुझे बताइए, क्या तुम उससे बात करने की डू कोशिश करते हो? ये, डू हाँ। यू हम्म डू यू ट्राई टू टॉक विथ हिम? डू यू ट्राई टू टॉक विद हिम, सही है। यस, डू यू ट्राई टू टॉक विथ हम्म हिम? पहले मैं ये पकड़ना होता है कि भाई यूज कहाँ पे करें, देखिए कंफ्यूजन यहीं पे आता है। अब मैं इस पे रिवीजन सेशन ले जरूर रहा हूँ, बट ये कंफ्यूजन आ रहा है ना लगातार, इसको ही खत्म करना है। फिर से इसको समझ लीजिए, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो लास्ट में ता है, ती है, ते है आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश आपको सिंपल प्रेजेंट में जाएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कंटिन्यूअस के लिए क्या हम याद रखेंगे प्रसाद जी? कंटिन्यूअस में क्या हो सकता है, हिंदी में क्या हम पहचान बता सकते हैं?
क्या आएगा हिंदी में? कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस करता हो हूँ। जाएगा। करता हूँ। Yes. करता हूँ हो जाएगा। कर रहा हूँ, सॉरी। कर रहा हूँ, करेक्ट। तो ये कुछ बातें याद रखनी होती हैं, और ये ज्यादा गहरी और उतना ऐसा नहीं कुछ खास है, बहुत ज्यादा रटने वाला है। समझिए इसको। डेली वर्क हो रहा है, डेली काम करते हैं, ताहत यही आता है जनरली, राइट? तो डेली वर्क है, हैबिचुअल वर्क है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो वो आप सिंपल प्रेजेंट में ले जाते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का पार्ट हो गया। कोई काम पूरा हो चुका है, आपने कोई काम कर लिया है ना? चुका है, ओके। चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गया है, आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो गई? या तो समय दे रखा होगा और रहा रही होगा, रहा है जैसे वह सुबह से आ रहा है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। अगर समय नहीं दे रखा होगा तो किसी भी तरह से ये आपको डिनोट कराना चाहेगा कि कोई काम लंबे समय से हो रहा है या एक समय उसमें है। मैं जाता रहा हूँ, है ना? मैं जा रहा हूँ और मैं जाता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। आप मुझे बता सकते हैं प्रसाद जी, मैं जा रहा हूँ और मैं जाता रहा हूँ, इसमें से कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता रहा हूँ। हम्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जा रहा हूँ। करेक्ट। मैं जाता रहा हूँ, इसमें समय ओपनली दिया नहीं गया है, डायरेक्टली दिया नहीं गया है, पर जाता रहा इसमें ये चीज शामिल है कि कोई चीज लंबे समय से हो रही है, मतलब वो तुम करते रहे हो वो चीज। ठीक है? तो इस तरह से भी लिया जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, और लैंग्वेज में तो हमें ऑब्जर्व करना होता है। कोई काम आप लंबे समय से कर रहे हैं तो आप हैव बीन, हैज बीन लगा देंगे। अब आपका मतलब यही होगा कि मैं एक कर रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग, मतलब आप लंबे समय से कर रहे हैं तो आप उसको शो करना चाहते हैं हैव बीन करके। बट जनरली कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप इसमें जनरल आंसर करेंगे, आई एम स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है? तो हम जनरल टर्म में जो सिंपल वाला कंटिन्यूस है वो यूज करते हैं। और कोई लंबे समय से या समय जहाँ पर एक स्टैम्प होता है, मायने रखता है, वहां पर हम परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाते हैं। ठीक है? चलिए, सुरजीत जी एंड अभिजीत जी, आर यू अवेलेबल और नॉट? Yes, sir. यस, यू आर टेकिंग डिनर। Yes, sir. Available. व्हाई डोंट यू शो योर फेस? यू आर सच हैंडसम बीइंग। अपना चेहरा छिपाना क्यों? इतना अच्छा चेहरा लेकर चल रहे हैं। हम्म? और हमें देखिए, हमारे तो बाल झड़ चुके हैं, बिल्कुल टकले हो चुके हैं, बुढ़ापा सर पे है। दुष्यंत कुमार की कविता पढ़िएगा, एक बढ़िया है। इनसे मिलिए, ये हैं दुष्यंत कुमार। पर आप दुष्यंत कुमार तो है नहीं, है ना? आप तो एकदम हैंडसम एक्टर। डोंट हाइड योर सेल्फ। फिर से हाइड कर लिया। शॉप Yes, पे sir. बैठ, आर यू स्टेइंग एट शॉप, वर्किंग एट शॉप, काइंड ऑफ? Yes, sir. ओके, Medical store. all right. So you are running shop and taking this class, doing two works simultaneously. एक साथ दो काम। Yes, sir. कोशिश कीजिए थोड़ा फोकस रहने की, क्योंकि अभी आपने एक तो मिड मिड सेशन ज्वाइन किया है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, है ना? तो Sure. चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? तो अगर पहचान की बात करें तो जिसमें ता है, ती है, ते आएगा। मैं पूछता ही जाता हूँ, मैं खुद बताऊंगा नहीं अब। तो बताइएगा मोनाली जी, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, वो कौन सा टेंस होगा इन चारों में से? अनम्यूट योर सेल्फ, बताइए। फिर से बोलो सर। जिस काल के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आएंगे, वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? ता था नहीं, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कौन सा होगा? जो हैबिचुअल वर्क, जो डेली क्रिया होती है वो। एक एग्जांपल दीजिए। सन सन सनराइज। सनराइजेस सनराइजेस इन इन इज द सेड ईस्ट, इन द ईस्ट, इसकी हिंदी क्या इन होगी? इसकी हिंदी क्या होगी?
सूरज पूरब में उगता है। ता है ती है, अच्छा तो ये सिंपल प्रेजेंट है, पर अभी तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला था। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा ये सिंपल प्रेजेंट है। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। मुझे बताइए क्या डिफरेंस है, मैं कैसे डिफरेंस करूंगा, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। नहीं सर, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, मुझे आप एक बार बोलो ना प्लीज। जिस भी सेंटेंस में हिंदी में अगर अंत में ता है ती है ते है आता है, तो उसको आप मतलब क्या आप समझेंगे, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आधी क्रिया जो खत्म होती है उसमें। अभी आपने मुझे बोला सूरज पूरब में उगता है, ये कौन सा टेंस है, इसमें भी ता है आ रहा है। नहीं सर, अब मैं कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज ही तो नहीं होना है। आप में से कौन बताना चाहेगा इसको इजी वे में, कौन पेश कर सकता है? ट्राई योर लेवल बेस्ट सो दैट मोनाली जी कैन बी हेल्प्ड। रिवाइव कीजिए मोनाली जी को। मोनाली जी इज इन डेंजर। कौन करेगा रिवाइव इनको? कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग फ्रेजाइल। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल बताना है या चारों का डिफरेंस? ये कंफ्यूज हो रही हैं, तो इनको कैसे भी बताइए कि आप कैसे बताएंगे आप इनको, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हिंदी के जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं उसमें आता है ता है ती है ते हैं। हम्म। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसके लास्ट के वर्ड होते हैं, जैसे कि आपको मतलब इतना पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो हैप्चुअल में हुआ, तो उस वजह से आपने सही मतलब बोला था कि डेली एक्शन है, तो उसका बस आपको हिंदी का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो जो हैबिचुअल एक्शन होंगे वो उनके हिंदी में एंडिंग में आएगा ता है ते है ती ही। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेकंड टेंस है उसका उसको हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जो काम कंटिन्यूसली चल रहा हो। सॉरी, रेगुलर बेसिस में नहीं, मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा हो प्रेजेंट में, तो इसको हिंदी में कहेंगे जैसे कंटिन्यू चल रहा है। तो मतलब इसको बोलने में ही हमें पता चल रहा है कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं। थर्ड वन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। बाय मिस्टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी जो हो चुका है, कंप्लीटली डन, यानी कि इट मीन्स कि जो काम हो चुका है। ये तो बोलने में मतलब इसको आप एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं कि आपको जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ये बोलने में ही आ जाता है कि जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके एंड में आएगा चुका है। जिस सेंटेंस की सेंस इस वे में आ रही हो कि वो काम पूरा हो चुका है, जैसे कि मैं मैंने स्कूल का काम कर लिया है, यानी कि अब इसमें चुका है एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, बट सेंस ये आ रही है कि मैंने काम कर लिया है। तो लिया है, चुका है, वो वहां चला गया है, इस सेंस के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। देन लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें यानी परफेक्ट के सेंस भी ले लीजिए और कंटिन्यूस के भी ले लीजिए, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, कि मैं एक काम कंटिन्यूसली कर रही हूँ। यानी कि अगर मैं परफेक्ट सेंस में बोलूँ तो मैं जैसे कि इजी वे में बोलती हूँ, मैं 2 घंटे से गार्डनिंग का काम कर रही हूँ, यानी कि मैंने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मेंशन भी कर दिए। यानी कि इससे आपको पूरी एक सेंस पता चल रही होगी कि मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या वे में बात आती है। आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो। एक थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा कि परफेक्टली कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक स्पेसिफिक टाइम भी दे रखा है और कंटिन्यू भी है, तो एक पॉइंट से कंटिन्यू है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं उसको। मोनाली जी क्या समझे आप, अपना रिफ्लेक्शन दीजिए। जो था ये सिंपल प्रेजेंट था, जो आपने मुझे पूछा पूछा था। था, ग्रेट। अब आप बताइए चारों क्या होते हैं, समझाइए कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हिंदी में यह प्रॉब्लम आ रही है आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें जो जैसे कि रहता है कि ता है, मीन्स जो हैबिचुअल हैबिट्स है कि एक आधी क्रिया डेली बेसिस पे होती है जिसमें ता है, ती है, ते है। दिस दिस इंक्लूडिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ओके। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक आधी क्रिया जो चल रही है। राइट। हाँ, एक आधी क्रिया जो चल रही है, सम एक्शंस आर इज गोइंग ऑन, सो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन एक आधी क्रिया जो हो चुकी है, जस्ट लाइक एक आधी क्रिया हो चुकी है, चुका है। ओके, मीन्स जो क्रिया हो चुकी है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। और एक आधी क्रिया कंप्लीट होने के बाद में भी चल रही है, इट्स कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा लास्ट में इसको कर सकते हैं, कंप्लीट होने के बाद भी चल नहीं रही है, वो चल ही रही है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट से चल रही है। उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेंगे। हाँ, ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो काम पूरा हो चुका है फिर चल रहा है, तो ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, पूरा हो चुका है फिर चल क्यों रहा है। मतलब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से चल रहा है, तो परफेक्टली कंटिन्यूशन में है। परफेक्टली मतलब एक पॉइंट दे रखा है, उस समय से चल रहा है। तो इसको वो ट्रिक के लिए मैं समझाया था कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, और वो ट्रिक भी नहीं, कॉन्सेप्ट भी है कि हैज आ रहा है उसके बाद बीन आ रहा है। तो वो चीज़, वो हेल्पिंग वर्ब को समझाने के लिए मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस को इस तरह से देखा था। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई स्पेसिफिक पॉइंट से काम चल रहा है, यानी टाइम दे रखा होगा, एक टाइम मेंशन होगा। मेंशन नहीं होगा तो वो दिखाने की कोशिश करेगा, जैसे मैं जाता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ये आ गया ना। अब आपने इतना बता दिया, हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि मैं ता रहा हूँ, तो यहाँ पर रहा हूँ आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, बट लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ ता रहा हूँ हो गया है, इसमें समय मेंशन नहीं है डायरेक्टली, पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, तो लंबे समय से कोई काम चल रहा हो या फिर समय दे रखा हो, तो वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे, है ना मोनाली जी? हम्म। समझ पाए हैं आप? नहीं, थोड़ा डाउट ही लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, अभी प्रसाद जी एक्सप्लेन करेंगे, सुनते रहिए, मैं सबसे पूछ ही लेता हूँ। शुरू से एक्सप्लेन कीजिए प्रसाद जी। वही एक्सप्लेन करना है ना सर? हाँ, शुरू से। हिंदी से मराठी में, सॉरी, हिंदी से इंग्लिश हाँ, में। एक एक डाउट और आ गया मेरा, मैं अभी बोलने वाला था बीच में। मराठी में क्या एक आधी क्रिया कुछ कुछ ऐसा होता है क्या? एक आधी क्रिया कैसे यस, बोलते हैं? एखादी क्रिया। हम्म। मतलब मोनाली जी आप बोल रहे थे एक आधी क्रिया, उसका मतलब क्या है? एक्शन, एक्शन। कोई क्रिया, कोई क्रिया। अच्छा, एक आधी मतलब कोई, ठीक है चलिए। ओके। सर, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो हैबिचुअल है, मतलब जो डेली लाइफ, जो अपन डेली करते हैं। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, सॉरी, हाँ बराबर, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो यहाँ पे ताहू आ गया, तो ये जो अपन डेली करते हैं, ये मतलब एक हैबिचुअल जो डेली का काम है, वो उसमें जब ताहू आता है तो वो बन जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मतलब ये मैं सिर्फ आज का बता रहा हूँ और जो कर रहा हूं मैं। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें रहा हूं यूज किया। तो जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो चुका हूं, मैं ये काम, सॉरी, मैं ऑफिस जा चुका हूँ, मतलब मैं ऑफिस जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू यस। ऑफिस। यस, तो यहाँ पे चुका हूँ आएगा तो आई हैव गॉन टू ऑफिस। यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैं जा चुका हूँ ऑफिस में, ये मैं ऑफिस ऐसे बोल गया। सकता हूँ, मैं ऑफिस गया हूँ, अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो क्या गलत होगा या सही होगा? ऑफिस गया हूँ, मैं ऑफिस गया हूँ, क्या ये वही चीज नहीं है? सर, वही चीज, हम्म। मैं ऑफिस गया हूँ। मैं ऑफिस जा चुका हूँ या मैं बोल दूं मैं ऑफिस गया हूँ, क्या दोनों सेम है या फिर अलग अलग है? सेम ही है, ठीक है चलिए। गया हूँ, हम्म। यहाँ लगा हुआ है। नहीं सही है, आप कंफ्यूज हो रहे थे तो मैं ऐड कर दिया, बिल्कुल सही है ये। ठीक। तो वो चुका हूं का आ गया। तो हम्म। जैसे, और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
मैं ऑफिस अ, चुका हूँ। मैं ऑफिस जा तो नहीं, ऑफिस नहीं आएगा यहाँ पे। मैं काम कर तो रहा हूँ। सर लास्ट का थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। टाइम जोड़िए और रहा रही लगा दीजिए। सुबह से, 2 बजे से, 5 बजे से। हाँ हाँ, मैं मैं सुबह से काम कर तो रहा हूँ। कर रहा हूँ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मतलब जो काम चल भी रहा है, मतलब कुछ काम हो भी गया है या और वो आगे काम चल भी रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम सॉरी आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम्म। तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम्म। अभी मैं समझ पा रहा हूँ, ये आपने बोला मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अब एक और दूसरा कैटेगरी बताया था मैंने, इसमें दो कैटेगरी हैं। एक समय दे रखा है, सुबह से काम कर रहा हूँ, मोनाली जी शायद वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं जब मैं समझा रहा था तब। दूसरी कैटेगरी क्या है आप समझते हैं? बिना, अगर समय समय नहीं दे रखा होगा तो क्या कहेगा ये? और नहीं, वो तो ठीक है, सेंस फॉर आएगा। आप में से कोई हेल्प करे यहाँ पे, दूसरी कैटेगरी क्या है? प्रसाद जी की हेल्प। दूसरी है, एक मिनट सर, याद नहीं को, आ रहा कोई हेल्प करेगा प्रसाद जी को? मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, दूसरी कैटेगरी क्या है? सुबह से हटाएं तो हिंदी में क्या बोलेंगे? है। और कुछ तो बोला था किसी को याद नहीं है? सावन सर, जी, आपने पल्लवी बताया जी, था, जस्ट याद नहीं आ रहा। दिव्या जी, सुजय जी, मोनाली मैं जी। काम करता आ रहा, मैं सुबह से अगर हटा दें तो मैं काम करता आ रहा हूँ। करता आ नहीं, करता रहा हूँ। मैं सुबह से काम करता रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जिसमें समय दे रखा होगा, सुबह से, 2 दिन से, 5 दिन से, 4 दिन से, और रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये होगा। दूसरी कैटेगरी, अगर समय नहीं दे रखा होगा तो वो बताना चाहेगा कैसे भी करके कि ये काम लंबे समय से हो रहा है। तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ की जगह पे मैं काम करता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ, वह खेलता रहा है। तो यहाँ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, दो चीजें जुड़ गई हैं। ता रहा, ता जुड़ गया, एक रहा है, रही है, रही है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, चीजें सिंपल होती हैं अगर मैं ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हूँ ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। पर ये जरूरी है, दोनों ही कैटेगरी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब एक बार फिर से हम इसको समझेंगे दूसरे किसी पर्सनैलिटी के साथ। अम सुरजीत जी, आर यू अवेलेबल? यस सर। खाना खा रहे हैं क्या अभी? खा लीजिए। नहीं। ओके, खा लीजिए, खा लीजिए। ओके, ठीक। पल्लवी जी बताइए शुरुआत से। सिंपल जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ता है, ती है, ते है, ऐसा यूज करते हैं। जैसे कि मैं जाती हूँ, आई गोन, आई गो। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम जो चल रहा है, अ, और इसमें रहा है, रही है, इसका यूज होता है। और जैसे कि अ, मैं जा रही हूँ, जैसे कि आई एम गोइंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि कोई काम जो पूरा हो चुका है। जैसे कि आई हैव ईटन माई, सॉरी, आई हैव डन माई होमवर्क। जैसे कि मेरा होमवर्क हो चुका है, इसमें चुकी है, चुका है, ये यूज होता है। और कुछ? और चुकी है, चुका है के अ, अलावा? मेरा काम हो गया है। हम्म। और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है,
जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, और मैं सॉरी, मैं सुबह से काम करता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता रहा है, ती रही है, और रहा रही है, ये यूज होता है। रहा रही के साथ ये जरूर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप रहा रही है तो उसमें भी आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है फिर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही है जब आता है, तब उसमें टाइम मेंशन, जैसे कि यस, सिंस और फॉर। यस, टाइम जरूरी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मोनाली जी आप सुन रहे होंगे ध्यान से, आई होप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये अंतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है नॉर्मली, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, फिर टाइम भी होता है सिंस और फोर के साथ। और अगर टाइम नहीं होगा तो अभी पल्लवी जी ने बताया था, दूसरा कैटेगरी क्या है पल्लवी जी? दूसरा ता ता रहा है, ती रही है, यस, दूसरा जमता ता रहा। रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, उसमें समय नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ता रहा है, ती रही है, अंतर है ना दोनों में। एक रहा है, रही है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, और दूसरा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। या फिर समय दे रखा होगा, दो चीजें हो सकती हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। या तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम सिंस और फोर के साथ। दूसरा कैटेगरी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, ओके। आप लोग लिखते तो है नहीं कुछ? चलिए, मेंटली ही याद रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को, बिल्कुल। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सावन जी आप बताइए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सर जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हैबिचुअल हैबिचुअल में जो भी एक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी एक चीज अच्छा, है सर, जैसे और कि डिटेल में बताइए, ये बहुत बता दिया है हैबिचुअल, और भी कुछ आता है क्या? सब बता दीजिए अब, हैबिचुअल। यस सर, एक एक जो होता है सर, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जो लेते हैं ना सर, हेल्पिंग वर्ब एज ए मार्क, तो हम हम्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, जैसे बी 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 और यूज टू के साथ, जैसे सब्जेक्ट प्लस बी यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वो अलग सेंटेंस आएगा बाद में। जैसे अभी अगर हमें कोई हैबिचुअल बोलना होगा, कोई हैबिचुअल, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो हमारा हैबिचुअल वर्क हो गया। बट अगर यही अगर हमें उस फॉर्म में अगर बोलना होगा, जैसे हम कंफर्ट जो है, मतलब हम उसके साथ कंफर्ट है या हम फैमिलियर है उसके साथ, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि जैसे कि आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, ये भी हम यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कि सेकंड सेकंड वन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक टेंस। मिनट रुकिएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक मिनट, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये लोगों के लिए। आपने आई एम यूज टू वाला, वो ये यूज है, बी यूज टू, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये भी तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, एम के साथ कोई नॉन वर्ब, जैसे इज एम आर के साथ, वो वाला बता दीजिए। आई एम ऐसा, ये हो सकता है क्या? आई एम अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ऐसे। यस, जैसे हम बी का फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं, जैसे जैसे बी का, एमिजर का भी ले सकते हैं सर, आई एम अ डॉक्टर। बी का नहीं नहीं फर्स्ट फॉर्म सर, थोड़ी जैसे ना। आई एम अ डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर हूँ। हम्म नहीं, अपना इसका ये तो फिफ्थ आ गया सर, बी का। हम्म इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सिंपल यूज कर प्रेजेंट। सकते हैं, जैसे कोई होने की अवस्था को भी हम दर्शा सकते हैं कि हाँ वो। राइट, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट में दो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैटेगरी से होती जैसे हैं, दो कैटेगरी होती हैं, राइट? हाँ सर, उसमें जैसे यूज कर सकते हैं मतलब। जी सर। ओके। और जैसे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बोल सकते हैं कोई एक्शन अभी चल रही है, जैसे आई एम गोइंग। अगर मतलब हम अभी कंटिन्यूस में ऑन गोइंग है, तो उस समय पे हम कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं सर। और अगर परफेक्ट टेंस का बोला, जिसके और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस के लास्ट में हमेशा जा रही है, जा रहा है, मतलब ये वर्ड आ सकते हैं, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ प्रोसेस अभी, एक्शन अभी चल रही है। और अगर परफेक्ट टेंस की बात की जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें कोई एक्शन हो चुकी होती है, जैसे चुका है, चुकी है, या गया है, गई है,
ये भी हम यूज कर सकते हैं। एंड हम ये भी बोल, जैसे सर हम ये लग सकता है अपना एक पास्ट पार्टिसिपल में बीइंग यूज कर सकते हैं ना सर, अगर किसी होने की अवस्था को अगर दर्शाया जाए। जैसे अभी बीइंग। मैंने यस्टरडे आई सॉ, हाँ हाँ, जैसे अगर कोई चीज एक देखा था कल, जब चैट जीपीटी पे अपना क्विज सॉल्व कर रहा था, तो उसमें था कि अगर आप किसी चीज, मतलब जैसे बोलते हैं ना सर, आई हैव गॉन टू रेस्टोरेंट, तो उसमें क्या गॉन मतलब वो गया है, वापस नहीं आया है। हम्म। तो कभी हाँ, वो एक चीज को हम ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे अगर हम कश्मीर घूमने नहीं गए हैं, तो बोल हम्म। सकते हैं कि हैव यू बीन राइट। विजिटेड कश्मीर, तो करेक्ट। उसकी जगह पे हम बीन यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत और प्यारा। और फिर जो अभी लास्ट वन है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें कोई क्रिया जो हो सकता है पास्ट में भी चलती आ रही है, अभी वो ऑन गोइंग है, मतलब कंटिन्यू चल रही है लंबे समय से, और इसमें एक हम्म। स्पेसिफिक टाइम को दर्शाया जाता है कि अभी चाहे मॉर्निंग से हो या कुछ सालों से हो, वो चलती आ रही है। तो स्पेसिफिक टाइम को दर्शाया जाता है। हम्म। यही एक मेन डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में। हम्म। राइट। बढ़िया। ओके सर। सुरजीत जी आप बताइएगा। यस सर। आप बताइएगा स्टार्टिंग से एंड तक। हाँ, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। हम्म। तो इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हम्म। ये लगा हुआ आता है, तो उसमें हम जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म से मतलब सिंगुलर के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। और हाँ, वर्ड का फिफ्थ फॉर्म ही लगाते हैं सर। और उसके बाद फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं। हम्म। डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। राइट। और जब नेवर का अगर प्रयोग आ रहा है बीच में, तो नेवर साथ हम जो है एस या ई एस का फॉर्म यूज करेंगे उसमें सर, बढ़िया। सिंगुलर और प्लूरल देख के। बहुत बढ़िया पॉइंट प्लूरल रखा। के साथ जी। और सिंगुलर के साथ करेंगे सर। और इसको हैबिचुअल वर्ब भी बोलते हैं सर। हम्म। और जहाँ पे होने की बात होती है, तो वहाँ पे हम ईजेएमआर यानी वी का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, जो ईजेएमआर होता है। करेक्ट। और उसके बाद सर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम्म। यानी जो अब कंटिन्यूअस चल रहा है अभी। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यूज होता है इसमें, आता है इसमें। और इसमें इज एम आर यूज होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इज, और प्लूरल के साथ आर, और जो है आई के साथ एम का प्रयोग राइट। होता है इसमें। करेक्ट। उसके बाद सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है इसमें। अ, कार्य हो चुका है, अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है, कार्य हो चुका है, तो इसमें हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज को सिंगुलर के साथ, और हैव को प्लूरल के साथ राइट। में लाएंगे इसको सर। और उसके बाद फिर आता है सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें ता रहा है, ती रही है, वाक्य के अंत में आएगा, और जो है समय का या फिर समय का प्रयोग होगा। राइट। तो इसमें जो है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ग्रेट। हम्म। अभी कुछ बातें एक्स्ट्रा भी आई हैं, बहुत बढ़िया। जैसे अभी कुछ पॉइंट रखा, जैसे एक उन्होंने रखा था, सावन जी ने एक बीन का बढ़िया यूज बताया था। एक पॉइंट इन्होंने रखा सुरजीत जी ने, जिसमें इन्होंने उसका यूज बताया नेवर का, जो मैंने मिस कर दिया था उसमें। हालांकि आपको जब पढ़ाया गया था उसमें नेवर वाला तो बताया था मैंने उसमें भी। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा एक और अच्छी तरह से। अभी आपने सब लोगों ने अपना अपना पॉइंट रखा है, तो इससे क्या है कि अब बार बार सुनने से चीज़ें थोड़ी क्लियर होती हैं, नहीं हुई हैं तो बाकी और होंगी, कोशिश करता हूँ मैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हमने दो चीज़ें समझी हैं, दो कैटेगरी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, एक तो एक्शन वाली हो सकती है कैटेगरी। ठीक है, एक्शन वाली, इसमें एक्शंस की बात होगी। ठीक, और एक स्टेट ऑफ बीइंग वाली कैटेगरी हो सकती है, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग। राइट।
तो एक्शंस की कैटेगरी और स्टेट ऑफ बीइंग की कैटेगरी। तो एक्शंस वाली कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब हम देखे थे, डू का डू भी रहता है और डज भी। डू की जगह कुछ भी आ सकता है, गो हो सकता है, गोज हो सकता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देखा था, डू या डज। आप लोग लिखते नहीं है तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग का हम जानते हैं यहाँ पर केवल फिफ्थ फॉर्म ही यूज हो सकता है, क्योंकि बी जो है, एक बी जो होता है, बी अपने आप में यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो बी का जो फिफ्थ फॉर्म है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बी की फॉर्म नहीं जानते हैं तो पिछली क्लासेस देखिएगा। आई होप सबको पता होगा, मैं पूछना चाहूंगा एक एक करके। पर पल्लवी जी आप बताइए, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म नहीं पता? was हाँ, वॉज was वर्क। वॉज और वर्क, करेक्ट। बी का अर्थ होता है होना। सुरजीत जी home आप बताइए, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है सर। बीन। फोर्थ फॉर्म बताइए सावन जी। बीइंग सर, बीइंग। बीइंग, BEING। करेक्ट। फिफ्थ फॉर्म बताइए दिव्या जी। is am I। यस, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में सिंपल प्रेजेंट में हम इज एम आर ही यूज करते हैं। तो दो कैटेगरी हुई इसमें, इज एम आर। तो अभी तो मैं बता रहा था लगातार कि ता है, ती है, ते है। अब मोनाली जी थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दूसरी कैटेगरी का दरवाजा खुल गया है। तो एक कैटेगरी ये जो बता रहा था पहले, कि जिसके लास्ट में क्या है, ता है ना, ती है, या ते है, या ता हूँ ऐसा आता है, ये वगैरह आपको आता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, या ता हूँ भी आता है, ता हूँ। ठीक। तो ये आपका एक्शन में हो गया। पर स्टेट ऑफ बीइंग में क्या है, सिंपल सा आएगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, कुछ होना। होना यहाँ पर ऐसा आएगा, मतलब कोई इंसान कुछ है। अब यहाँ पे है बोलूंगा तो थोड़ा सा पहचान गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एग्जाम्पल दे दे तो ज़्यादा बेटर, यहाँ पे आप समझ पाएंगे। जैसे मैं डैश हूँ, है ना, और वह, या यहाँ पे वह है, ऐसे आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से तुम हो, बीच में कुछ भी हो सकता है, तुम डॉक्टर हो वगैरह वगैरह। तो ये आपका बी फॉर्म है। तो एक इसका ये पार्ट हुआ। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। तो दो पार्ट हो गए। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो जैसे हम बोलें तो आई के साथ क्या आएगा, आई गो या आई डू। ठीक है। और ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लें, वी प्ले, है ना, बट ही के साथ क्या आ जाएगा, ही गोज, है ना, शी प्लेज। ऐसे आपके बन जाएंगे। ठीक है। प्लेज यहाँ पर आपका एस और एस लग जाएगा। तो ये हम समझ पा रहे हैं। तो इसकी पहचान हो गई, ता है, ती है, ते है, फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी की पहचान हुई है सिंपल प्रेजेंट में, ता है, ती है, ते है, जिसमें हम हैबिचुअल वर्क की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। राइट। अ, अ, या फिर रिपीटेड एक्शन कोई होता है उसकी बात कर लेते हैं, साइंटिफिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बोला था, सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है। ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। मैं डॉक्टर हूँ, तुम इंजीनियर इंजीनियर हो, वह एक कवि है। तो ये सब क्या है, इज एम आर के साथ लग जाएगा। ठीक। बाकी अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम एक ही कैटेगरी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं रहा है। ठीक है। रहा है, रही है। ठीक है। और रहा, रहा हूँ। ठीक है। या फिर रहे हैं, ये आपका आ जाएगा, रहे हैं। ठीक है। रहे हो, ये भी आ जाएगा, रहे हो। तो ये आपका इसमें पहचान होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल एक ही कैटेगरी होती है। ठीक। तो अब हम इसमें दो कैटेगरी समझ पाए इस वाले में, इसमें एक कैटेगरी समझ पाए हैं। अभी हम सबके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बाद में, तो अभी इसको समझ लेते हैं कि करके। अब यहाँ पर रहा है, रही है, ये सब हमें क्लियर है कि कोई काम जनरली ऑन गोइंग चल रहा है। राइट। परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या है, इसमें भी एक ही कैटेगरी है। नहीं, इसमें दो कैटेगरी आप कह सकते हैं, बट है वो एक ही, इसमें कुछ खास है नहीं। बस पहचान आपको याद रखनी होगी, चुका, चुकी, और चुके, है ना, चुका, चुकी, चुके, और ये चुका। इसके बाद आपका लगा होगा है, हाँ, हो, ऐसा कुछ होगा, हूँ। तो कुल मिलाकर क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये सब आपका वर्ड वर्ड आ जाएगा। और या फिर या है,
है ना, या है, ये है, ये है, ये सब आपका वर्ड होगा। जरूरी नहीं या ये हो, ऐसा भी हो सकता है ई है ना, ऐसा कुछ होगा, ई है, ए है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर परफेक्ट में काम कंप्लीटेड होता है। इसमें एक कैटेगरी हम समझ पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैटेगरी है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देन हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कितनी कैटेगरी है। यहाँ पर दो कैटेगरी है। ठीक, एक कैटेगरी जो कहती है रहा है, रही है, ठीक है, रहा है, रही है, एंड रहे हैं, रहा हूं। इसके साथ क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, प्लस क्या होगा इसके साथ बताइए। सेंस फॉर के साथ टाइम। टाइम, टाइम दे रखा होगा, यस, सेंस फॉर के साथ टाइम। ठीक है, सेंस फॉर प्लस टाइम ये होगा, टाइम स्पेसिफिक है यहाँ पर। तो एक कैटेगरी ये हो गई। अगर टाइम नहीं दे रखा होगा डायरेक्टली तो होगा ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ती रही है ना, ते रहे हैं, रहे हैं, और ता रहा हूँ। इसमें टाइम नहीं दे रखा है तब भी काम चल रहा है। अब इसमें और इसमें अंतर रखने की हमें बहुत जरूरत है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है, ये हमें समझना होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रहे हैं, ये आ रहा है। यहाँ पर क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ टाइम भी दे रखा है, जो इंग्लिश में सिंस और फोर के साथ आएगा। हिंदी में 2 बजे से, 12 बजे से, सुबह से, बचपन से, ये सब टाइम है। और अगर टाइम नहीं देखा होगा तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ऐसा होगा। इंग्लिश में हैज बीन, हैव बीन होगा। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी हैं। ठीक, दो कैटेगरी, तो हम इसको समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कैटेगरीज वाइज हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किसी में स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है और किसी में थोड़ा स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट आएगा पहले से, एज फॉर सब्जेक्ट, आई होप यू विल गेट इट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर इसमें एस और ई एस आएगा। V5 बोलते हैं एस और एस को, राइट। V5 इन केस ऑफ, इन केस ऑफ थर्ड पर्सन, पर्सन कौन सा, सिंगुलर, पर्सन सिंगुलर। ये बात भी याद रखेंगे। अगर V5 याद नहीं आ रहा है आपको तो ये वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ई एस है। ठीक है, कुछ और खास नहीं है। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। बाद में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और जो दूसरी कैटेगरी है वो कहती है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। इज एम आर कुछ और नहीं है, क्या है ये, बी का फॉर्म है। बी का कौन सा फॉर्म है, अभी बताया था, कौन सा फॉर्म है बी का, बताइए। फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म। फॉर्म। ये बी का फिफ्थ फॉर्म है, बी का फिफ्थ फॉर्म। तो हमें इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बी का ही फॉर्म है, बी फॉर्म है। हर हर एक आपका कंटिन्यूअस में बी फॉर्म आता ही आता है, कोई कोई भी हो। ठीक है, बी फॉर्म आता ही आता है, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा बीन के रूप में। अब इसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी कहते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका सेकंड कैटेगरी। सॉरी, गलत कर गया मैं, आई एम वेरी सॉरी। मैं इसमें चला गया, कंटिन्यूस में चला गया। ठीक है, ऐसे नहीं जाना मुझे। ये हम अभी बी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नॉन वर्ब आएगा, नॉन वर्ब। मैं यहाँ पे नाउन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नॉन वर्ब में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, नॉन वर्ब आ रहा है, यानी वर्ब नहीं आएगा। नॉन वर्ब का मतलब कि वर्ब नहीं आएगा, इसका मतलब वर्ब नहीं आएगा। नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, थर्ड फॉर्म लगी हुई आ सकती है, कंडीशनल। जैसे उन्होंने बी यूज टू का एग्जाम्पल लिया था, आई एम ब्रोकन, मैं टूटा हुआ हूँ। तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन वर्ब बोला। ठीक है, वर्ब आएगा तो वो कंडीशनल बन के आएगा। ठीक है, कंडीशनल क्या होता है वो आने वाले क्लास में हम और गहराई से देखेंगे उसे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे केस है। तो ये हम चीज़ें हम समझ गए कि कंडीशन बन के भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म बन जाता है वो। ठीक है, अम, अब यहाँ पर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं, तो यही चीज़ है, ये ऊपर जो हमने लिखा था ना, बस इसमें एक फर्क हो जाता है। इज एम आर लगा होगा, बस यहाँ पर वर्ब आएगा। यहाँ नॉन वर्ब वाला केस था, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लगा देंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं।
ठीक है, आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो गई। इज एम आर लग गया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आ गई। अब आप देखिए डिफरेंस अच्छे से देखते जाइएगा। यहाँ पर दो कैटेगरी थी, एक कैटेगरी में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इससे मिल रहा है, मिल खा रहा है, लेकिन इसमें इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, यानी एक्शन वाला है, ये एक्शन वाला। ठीक है, और ये नॉन एक्शन वाला है। यहाँ बोला था ना, एक तो एक्शन शो करेगा, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की अवस्था। ठीक है, होने की अवस्था। तो वहां पर नॉन वर्ब आता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक्शन है, वर्ब फोर्थ, आई एम डूइंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, ही इज डांसिंग, ऐसे। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने एक कैटेगरी देखी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब चाहे तो या है, ये है, कोई दूसरी कैटेगरी कह सकते हैं, बट वो है एक ही चीज, है ना। इसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा, एंड देन उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड देन ऑब्जेक्ट है लगा देंगे। ठीक है, हैज दरअसल में हैव का ही फिफ्थ फॉर्म है। तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन सब में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो आपके बनते हैं, एक तो बनता है सब्जेक्ट हैज बीन, ठीक है, या हैव बीन, प्लस यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी यानी आईएनजी फॉर्म जो ऊपर बताया था, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर सिंस एंड फॉर, उसके साथ आप टाइम लगाएंगे, सिंस और फॉर के साथ, ये आपका केस बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, बिना टाइम वाला, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट तक होगा, ये वाला जो हिस्सा है टाइम वाला, ये यहाँ पर नहीं दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ता रहा ती रही वाला केस है ये, है ना, टाइम हमारे पास दे नहीं रखा स्पेसिफिक। ठीक, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को, कोशिश करेंगे समझने की। तो हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में देखने की कोशिश की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है कब, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई होप आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर आता होगा। मोनाली जी बताएंगे मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, जल्दी से बताइए मोनाली जी। ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर। सिंगुलर नाउन, तो वहां पर आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। अब सिंपल प्रेजेंट में कितनी कैटेगरी है मोनाली जी टेंस की, दो कैटेगरी। पहला एक एक्शन वाली, दूसरा स्टेट ऑफ स्टेट बीइंग ऑफ वाली। बीइंग। हाँ, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है बताइए। बी बी के बी बी के फॉर्म्स लगते हैं। बी कौन सा? बी बी फर्स्ट बी, सेकंड वाज वर्ब, थर्ड नहीं बीइंग, नहीं नहीं, फोर्थ प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट में बी की कौन सी फॉर्म लगती है, यहाँ लिखा है साफ साफ, ध्यान से देखिए और देख के बताइए। फर्स्ट। फर्स्ट नहीं है, बी का फर्स्ट फॉर्म बी ही होता है, साफ साफ लिखा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बी का कौन सा फॉर्म है जमार, फर्स्ट फॉर्म नहीं है ये, अभी यहाँ पे ये लिखा था। फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ है। हाँ, तो प्रेजेंट में वी की फिफ्थ फॉर्म लगती है सेकंड कैटेगरी में, इस चीज को आप याद रखेंगे। गॉट इट? ठीक, तो दो कैटेगरी हैं, सब लोग सीखेंगे इसको। सिंपल प्रेजेंट में दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी एक्शन वाली है, एक कैटेगरी जिसमें एक्शन शो होता है, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम हंसते हो, तुम रोते हो, वह खेलता है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम खाना पकाते हो, ये सब एक्शन है, राइट। और दूसरी कैटेगरी स्टेट ऑफ बीइंग वाली, वह डॉक्टर है, तुम इंजीनियर हो, मैं एक शिक्षक हूँ, तुम बीमार हो, वह खूबसूरत है। तो इस तरह से आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो दो कैटेगरी हैं सिंपल प्रेजेंट में, एक्शन वाली और स्टेट ऑफ बीइंग वाली। एक्शन वाली में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज बन रहा है। डू का मतलब कुछ और नहीं है, जो मेन वर्ब है उसी को हमने निकाल लिया। डू की जगह गो हो सकता है, डज की जगह गोज हो सकता है ना, प्ले हो सकता है, प्लेज हो सकता है। तो डू का मतलब कोई काम करने वाला, जिसको डूइंग वर्ब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर हम यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। फिफ्थ फॉर्म कब लगाते हैं, जब हमारे पास थर्ड पर्सन का सिंगुलर का केस होता है, राइट, ये चीज। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम एस और एस फॉर्म भी बोलते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही कैटेगरी होती है जहां पर जनरल वे में कोई काम चल रहा हो, चल रहा है ना। तुम खाना पका रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, वह आ रहा है, वह पढ़ रही है ना, ये सब चीजें। यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा होगा इसमें। और इसमें क्या अंतर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये अंतर होता है कि इसमें टाइम दे रखा होता है, इसमें टाइम नहीं दे रखा होता है। सेकंड कैटेगरी में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये दे रखा होता है। दरअसल में उसमें भी टाइम शो हो रहा है, बट वो हिडन है ना, वो हिडन है। तो हैज बीन, हैव बीन इंग्लिश में, और या फिर हिंदी में ता रहा है, ती रही लगा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, या ये है, ये है, ये सब होता है। तो यहाँ पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म
लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर दो कैटेगरी है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम दे रखा होगा, सिंस और फोर के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम दे रखा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है जिसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है। तो इंग्लिश में हैज बीन, हैव बीन दे रखा होगा, उससे समझ जाएंगे हाँ परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस है। हिंदी में ता रहा है, ती रही है, उससे समझेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक। अब आपको ये बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे याद रखें कि अगर एक बार आप एस और एस लगा देते हैं तो फिर उसके बाद एस और एस नहीं लगेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही डज नॉट गो टू टेम्पल, ही डज, डज में एस और एस लगी हुई है तो आप ही डज नॉट गोज नहीं कर सकते हैं। ही ट्राइज टू प्ले मार्बल्स, ही ट्राइज, ट्राइज में एस और एस लगा दिया आपने तो आगे जो आया टू प्ले उसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो वाला नेवर वाला, नेगेटिव में इसका एक बन जाएगा। जैसे हम इसको ले लेते हैं, सरजीत जी ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं बोल लेता हूँ ही गोज, ये करेक्ट है हमारा, बट हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। देखिए ही डज नॉट गो हो जाता है, राइट, डज नॉट या डजंट, डजंट गो कर देते हैं। किया, एक मिनट। ठीक है, ही डजंट गो कर लिया। और इसको अगर हम नेवर में बनाएंगे, वह कभी नहीं जाता है, तो ही नेवर, अब क्योंकि डज नहीं लग रहा है इसमें तो क्या आएगा, गो आएगा, गो जाएगा, बताइए सब लोग क्या आएगा, जल्दी से बोलिए। गोज। गोज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज नहीं लगा हुआ है, डज में एस और एस लगा दिया तो गो एस और एस हट गया इसका, बट नेवर आया था इसलिए यहाँ पे गोज रहा। मोनालिस क्या बात आपको समझ में आ रही है ये, हाँ आ रही है। नेवर में हमने डज नहीं लगाया इसलिए वो लग गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात आई थी सामने इनके एग्जाम्पल में, सावन जी के एग्जाम्पल में, परफेक्ट वाले में, दरअसल वो कुछ और नहीं था बट यही था कि उन्होंने बी का यूज कर लिया था। तो वो जैसे मैं कहते ना कि एक बनता है कि हैव यू एवर बीन इन लखनऊ, हैव यू एवर बीन, बीन इन लखनऊ, इसका मतलब क्या है कि आप कभी लखनऊ गए हैं, इसका मतलब ये होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप क्या लखनऊ में कभी हुए हैं, ऐसा सेंस निकल रहा है ट्रांसलेशन, बट वो नहीं है कि आप कभी लखनऊ गए हैं। तो बीन मतलब वहां पर होने की अवस्था, वहां उपस्थित हुए हैं, इसका मतलब ये। तो ये बीन जो है ना, वो ऐसे मत समझिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन आ गया है, यहाँ पर हैव है और ये मेन वर्ब के रूप में आया है। ठीक, जो सावन जी ने एग्जाम्पल लिया था बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे बीन ये एक तरह से होने की अवस्था है, इसमें भी देखने को मिल गई है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर, ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर, इसका मतलब है कि वो बहुत लंबे समय से एक अच्छे डॉक्टर है। ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर, या फिर वो एक अच्छे डॉक्टर हो चुके हैं, ये भी बोल सकते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर हो चुके हैं। और या हम बोल दें यू हैव बीन प्रमोटेड, इसका पैसिव में भी यूज कर लेते हैं, यू हैव बीन, मिनट रुकिएगा। ठीक, यू हैव बीन प्रमोटेड या फिर यू हैव बीन पास, तुम पास हो चुके हो, यू हैव बीन प्रमोटेड या पास, प्रमोटेड, ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम प्रमोट हो चुके हो। ठीक है, बीन, बीन का यूज होने की अवस्था में कर सकते हैं। क्लियर। तो ये अभी आपने देखा, तो ये दरअसल में कुछ और नहीं है, यहाँ पर ये बीन जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है, मेन वर्ब, वर्ब के रूप में आया है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर जानते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करे मेन वर्ब को लगाने में, है ना, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करे मेन वर्ब को लगाने में, मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज था, उसके अकॉर्डिंग बी का थर्ड फॉर्म बीन लग गया। ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर, हैव यू बीन अ गुड स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो चुके हैं, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, हैव यू बीन अ गुड लर्नर, हैव यू बीन अ गुड लिसनर, आई हैव बीन बिजी, मैं बहुत बिजी हो चुका हूँ यार, पहले टाइम मिलता था बट नाउ डेज आई हैव बीन बिजी, ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव बीन बिजी, मैं बिजी हो चुका हूँ। बहुत बोरिंग क्लास हो रही है आज। अब बताइए कैसा आपका हाल है। अच्छा, एक शायरी सुनाता हूँ, बहुत पहले लिखी थी क्लास नाइन्थ में। दिल में है दुआ, लबों पर सवाल है, कैसे हैं आप, कैसा आपका हाल है, बताइए कैसा आपका हाल है। इसको क्लास को लेने के बाद सब निकला सर के ऊपर से, बढ़िया। कितने लोगों को समझ में आया है। आउट ऑफ 10 बताइए, चलिए ईमानदारी से थोड़ा सा रेटिंग दीजिए अपने आप को, मुझे नहीं अपने आप को।
ठीक है, कितना समझ में आया है? कॉन्सेप्ट क्लियर? 10 आउट ऑफ 10 दिव्या जी को। अच्छा, आउट ऑफ 10 बताइए जल्दी से, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, जल्दी से बताइए। ऑनेस्टली बताइएगा प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 9 आउट ऑफ 10, ठीक है, पल्लवी जी का 9 आउट ऑफ 10 है। ओके, आगे। 7 आउट ऑफ 10 प्रसाद जी का, ठीक है। आगे, मोनाली जी 10 आउट ऑफ 10। अभी पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, रुकिए। और और बाकी लोगों का, सावन जी का 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। अच्छा, चलिए बताइए तो फिर, सावन जी समझाइए क्या समझ में आया आपको, और ये टू कहाँ पर घटे हैं, कहाँ पे कुछ, अगर कुछ फंसा हो, कुछ डाउट वगैरह हो तो चलिए बात करते हैं उस पर, बताइए। सर डाउट तो कुछ नहीं है, बट कभी कभी प्रैक्टिस करने से डाउट आ जाते हैं ना सर, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे क्या खुद, तब तक बोल नहीं सकते। अच्छा, अभी तो डाउट कुछ नहीं है, डाउट नहीं है, जितना आपने बताया वो तो। उतना क्लियर है, ओके। चलिए तो फिर, मोनाली जी आप बताइए, कैसा क्या हाल चाल है आपका? अमेजोन ग्रुप, कैन आई शेयर वन अमेजोन ग्रुप? हाँ भाई, ग्रुप की गरिमा का ध्यान रखते हुए भेजिएगा। चलिए, भेज दीजिए ग्रुप में इमेज, कुछ गलत होगा तो हम हटा देंगे खुद ही। बताइए। सर पहले से तो काफी चीजें जो क्लियर हो गई, हम्म बट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जब आप कोई क्वेश्चन करते हो या कोई किसी का ये पूछते हो, तब कंफ्यूजन होता है। हम्म, राइट। सो ये जहाँ पे जो कुछ डाउट है, जो कंफ्यूजन है, क्या कितना समझ में आया कितना नहीं आएगा, ये तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है सर। अभी तो आया है समझ में। आया है, तो मुझे अब एक बात बताइए आप, वह अच्छी बच्ची हो चुकी है, वह अच्छी बच्ची हो चुकी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हो चुकी है। वह अच्छी बच्ची हो चुकी है। वो अच्छी बच्ची हो चुकी है। हम्म शी हैज, अच्छी बच्ची हो चुकी है। होने की अवस्था। चुका है, चुकी है, पता है। चुका है, चुकी, ठीक है, बट होने की अवस्था के लिए बी फॉर्म का यूज करते हैं, और बी का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। शी हैज, शी हैज बीन गुड गर्ल। इसके साथ आर्टिकल भी आप लगा सकते हैं, सी हैज बीन अ गुड गर्ल, राइट। बढ़िया। हम्म। अच्छा, ये शेयर किया है आपने, हिंदी एंड मराठी प्रेजेंट टेंस एंडिंग ता है, ती है, ते हैं। अच्छा, फर्स्ट परफेक्ट। जातो, जाते, जातात इन मराठी, अच्छा जी, सही है। तो ये बढ़िया आपने काम किया, मराठी लोगों को हेल्प मिल जाएगी इसमें। कौन कौन है महाराष्ट्र से? प्रसाद जी हैं, और पल्लवी जी हैं, मोनाली जी हैं, इतने लोग हैं। सावन जी आप भी महाराष्ट्र से हैं क्या? नहीं, यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, आई थॉट लाइक यू आर फ्रॉम हाँ सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हूँ सर। अच्छा, तो मराठी के लिए भेज दिया है इन्होंने, हेल्प मिल जाएगी आपको। चलिए तो ये शी हैज बीन अ गुड गर्ल, बढ़िया। पल्लवी जी बताइए, वह झूठ कभी नहीं बोलती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? she she has, sorry sir, पहले ता है, ती है। हम्म हाँ, she sorry, she does, कभी नहीं है, she never talk talking, अच्छा, इंग्लिश नहीं sorry, आ रही, टेल अ लाई talk, होता है इसका, टेल अ लाई या लाई भी बोल सकते हैं। शी नेवर, she does, uh, she never tells a lie. यस, सी नेवर टेल्स अ लाई, डज की नीड ही नहीं है यहाँ पर। वह झूठ नहीं बोलती है तब होता है सी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ कभी नहीं बोलती है, सी नेवर टेल्स अ लाई। ओके, दिव्या जी बताइए, वह खाता रहा है, वह गाता ही खाता। कुछ भी बता दीजिए आप, प्रैक्टिस दोनों में हो जाएगी। He is continuously singing a song.
जुगाड़ इंग्लिश आपने यूज की है। सावन जी बताइए इसको रिफाइन करके। वह गाता रहा है। वह गाता रहा है। इसमें हम हैज बीन का यूज करेंगे। राइट। ही हैज बीन सिंगिंग। अ सॉन्ग। राइट। जो आपने पहले बोला था, ही इज कंटिन्यूअसली सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वो समझाने के लिए क्या, इसलिए मैंने कहा था जुगाड़ इंग्लिश। बट हमारे पास अदर ऑप्शन है, तो ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। राइट। सुरजीत जी, क्या तुम पढ़ते रहे हो? क्या तुम पढ़ते रहे हो? हम्म। हैव यू हैव यू बीन रीडिंग? करेक्ट, हैव यू बीन रीडिंग। मोनाली जी, वह बचपन से गाती रही है। दोनों लगा दिया मैंने, तार हाथी रही और वो बचपन से भी, तो बिल्कुल परफेक्ट कंटिन्यूस है। बताइए मोनाली जी, वह बचपन से गाती रही है। सर फिर से पूछिए एक बार। वह बचपन से गाती रही है, बचपन की इंग्लिश चाइल्डहुड होती है। वह बचपन से गाती रही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। सही है, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड, करेक्ट है। बढ़िया। ओके। प्रसाद जी बताइए, क्या तुम पिछले साल से यहाँ आ रहे हो? Have you have you come have you Have- been yes, have you been come here uh, since last year? एक बार फिर से बताइए। Have you been come here since last year? रहे हो, रहे हैं, ये सब में कम कभी आ सकता है क्या? रहा रही में तो एक चीज हमेशा साथ में चलती है, वो है आईएनजी। अच्छा सर एक बार सेंटेंस रिपीट करिए। आपने सब कुछ सही बताया, बस एक गलती करी है, आईएनजी नहीं लगाई है। क्या तुम पिछले साल से आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो? Have you been coming? हैव यू बीन कमिंग सिंस लास्ट ईयर, पल्लवी जी ने बताया ना आपको। चीटिंग। हैव यू बीन कमिंग सिंस लास्ट ईयर। बढ़िया। एक और बताइए तो फिर। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है? Have हैव नहीं, sorry शी है। has हम्म। uh, has she been writing a letter हम्म। for 2 o'clock for 2 o'clock? मैं सेंटेंस ही भूल गया, क्या बोला था, क्या बोला था सेंटेंस? क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है? तो 2 o'clock कैसे हो जाएगा? 2 o'clock तो 2 बजे से होता है, और Since 2 o'clock 2 बजे से सिंस 2 o'clock होगा, 2 घंटे से के लिए क्या होगा? अब दो आपकी घंटे के लिए क्लास इस पे लेनी पड़ेगी। काउंट ऑफ टाइम के लिए फॉर, या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। for हाँ। और अगर point of हाँ, time के लिए since सॉरी, हाँ मैंने गलत बोला, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, या फिर काउंट ऑफ टाइम के लिए फॉर, और नेम ऑफ टाइम के लिए सिंस। तो बजे से के लिए सिंस 2 o'clock करेक्ट है, बट यहाँ 2 घंटे था, तो फॉर 2 hours, घंटे की इंग्लिश आवर्स। hours. Okay. Has has she been writing a letter for 2 hours? जनरली एक बार में एक ही पत्र लिखा जा सकता है, तो आप ए लगा सकते हैं, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर Right. फॉर टू Writing आवर्स करेक्ट। हम्म। सर यस। सपोज उसका यहाँ होना ज्यादा जरूरी था,
हम्म इसका क्या होगा ट्रांसलेट? ये पास्ट का है पहली बात तो। आप में से कोई करना चाहेगा, उसका यहाँ होना जरूरी था, ज्यादा जरूरी था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। उसका यहाँ होना ज्यादा जरूरी था। टू बी हेयर एट द एंड आप लगा सकते हैं, बाकी आगे का आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। बताइए सावन जी। He must be present here बोल सकते हैं क्या सर? इट ही मस्ट बी प्रेजेंट हेयर। हाँ, सेंस के हिसाब से ठीक है। ट्रांसलेशन अगर इसको हम बनाएंगे और एग्जैक्टली करना चाहें तो ये सेंस के हिसाब से भी ठीक होगा और ट्रांसलेशन के हिसाब से भी ठीक होगा। तो उसको आप और वे में उसका यहाँ होना ज़्यादा जरूरी था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी हेयर, या इट वॉज इसेंशियल फॉर हिम टू बी हेयर, इट वॉज वाइटल फॉर हिम टू बी हेयर, ऐसे बोल सकते हैं। या इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी हेयर। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी हेयर। जैसे पहले हम इसको तोड़ के बन जाएगा ये। पहली बात ये, अब ये टॉपिक से थोड़ा आगे का है, हम इस पर रिवीजन करेंगे तब देखेंगे उस पर और अच्छे से। तो उसका यहाँ उसका यहाँ होना ज़्यादा जरूरी था। पहले बनाते हैं, उसका यहाँ होना ज़्यादा जरूरी था, है ना। तो ज़्यादा जरूरी था इसका बनाते हैं। ज़्यादा जरूरी था, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम इट का यूज़ करेंगे। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा जरूरी था का बन गया। अब उसका यहाँ होना, ठीक है, फॉर हिम टू बी हेयर, है ना, उसके लिए बोला गया ना, फॉर हिम टू बी हेयर। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी हेयर। और भी ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, बट ये मुझे अभी मन में आया तो ऐसे बता दिया। ठीक है। ओके। ओके, चलिए तो अभी। या फिर ऐसा हाँ भी हो सकता था, हिज प्रेजेंस मस्ट बी देयर। हाँ, ये भी जैसे अभी सावन जी ने बताया उसी तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे मस्ट भी हमने मॉडल का यूज किया है कि मस्ट उसी को दर्शाता है कि ये रिक्वायर्ड है कोई चीज। ही मस्ट बी हेयर भी बोल सकते हैं, है ना। या हिज प्रेजेंस मस्ट बी हेयर भी बोल सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, इट वाज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू बी हेयर, ये भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह से इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। ठीक है। हम्म, चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा इस पे कॉन्टम्पलेट कीजिएगा, कॉन्टम्पलेट मतलब चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एआई का यूज कीजिएगा। ठीक है, एआई का यूज भर भर के कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। बाकी कल हम और गहराई से इस पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और शायद अगर हो सकेगा पॉसिबल तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इस टॉपिक को हमें खत्म करना है अच्छे से। ठीक है। ठीक है, तो आई होप यू मे हैव लाइक दिस क्लास। रिवाइज कीजिए, और होमवर्क वही है कि आप अपना असेसमेंट कीजिए एंड देन शेयर योर स्क्रीनशॉट। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।